Hello everyone, this is another video of revision. In earlier video you have read about what is resources, transformation of resources, classification of resources, resource planning, why do we need resource planning in India, and process of resource planning. In this video, the next topic of this chapter we will read about the land utilization, land degradations, land conservation, for what purpose we are using land and soil as a resource, and soil conservation and method of conservations. So let's start with next topic. Let's start with topic conservation of resources. Why do we need to conserve resources? We need to conserve resources because they are limited in supply. We have to save it for our future generation. Irrational consumption and overutilization of resources lead to many socio-economic and environmental problems. So to overcome these problems, we have to conserve our resources. That's why we should conserve our resources. Now, land utilization. We live on land and we perform all economic activities on land, and we use it for different ways. Land is very important for human being. Why for human being? For everything it is very important, because it supports natural vegetations, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system also. Land is an asset of finite magnitude. Land is limited hai, so we have to use this land very carefully. We have variety of relief feature in India. 43% we are having plain, 30% we are having mountain, and 27% we are having plateau. 43% plain are used for agriculture purpose, industries purpose, and 30% mountain, they are perennial source of river and forest. 27% प्लेटू दे गिव्स अस मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं प्लेटूज़ में, तो दे आर सोर्स ऑफ मिनरल्स. So these relief feature is very important for us. Now, land utilizations in India, we use land for different purposes. First, forest land under available for cultivations, barren land, wasteland हो गई, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस हो गए, जैसे बिल्डिंग हो गए, रोड्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई. अनकल्टिवेटेड लैंड, उसमें जैसे पास्चर्स हो गए, ग्रेजिंग लैंड्स हो गए, या मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हो गई, और कल्चरेबल वेस्ट लैंड. फैलो लैंड, करंट फैलो यानी कि जिसमें हमने एक साल तक कोई कल्टीवेशन नहीं किया है, और अदर देन करंट फैलो जिसमें हमने 1 से 5 साल तक कोई कल्टीवेशन नहीं किया है. नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया, क्रॉप्स ग्रोन वंस इन ए ईयर, और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, सेकंड वन इज़ द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया. दोनों में क्या डिफरेंस है? नेट सोन एरिया, आई एम जैसे अभी वीट और मस्टर्ड की क्रॉप्स हुई हैं, अभी जो है दैट इज़ द रबी क्रॉप, और ये मान लो ये क्रॉप जो है हमारे 100 हेक्टेयर्स पर ग्रो की जाती है. लेकिन कुछ फार्मर्स अब नेक्स्ट जो क्रॉप ग्रो होगी, जो जुलाई आफ्टर रेन, तो वो जो है सब ग्रो नहीं करते. कुछ जो है फर्टिलिटी के लिए उसको अपनी लैंड को फैलो लैंड छोड़ देते हैं. तो ये 100 हेक्टेयर है, बट दूसरी क्रॉप मान लो केवल 50 हेक्टेयर पर जो है ग्रो की जाती है. तो टोटल जो ग्रोस क्रॉप एरिया हो गया वो कितना हो गया? 150 हेक्टेयर, और जो है हमारा नेट सोन एरिया कितना हो गया? 100 हेक्टेयर. तो दिस इज़ नेट सोन एरिया एंड दिस इज़ ग्रोस 150 ग्रोस क्रॉप एरिया. Land use pattern, if you will see, both factors, physical as well as human factor, determine the land use pattern. Physical factor like topography, which type of relief feature we are having, climate, soil type, or human factors like population density, technology, कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस. इंडिया का जो एरिया है दैट इज़ 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, और उस पर 93% ही डेटाज हमारे पास है कि लैंड का यूटिलाइजेशन हम 93
परसेंट ही है। हमारे पास क्यों नहीं है 7% का डाटा? क्योंकि उस जो है कुछ हमारा जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके डेटाज नहीं है, और कुछ हमारे ईस्टर्न स्टेट्स के डेटाज हमारे पास नहीं है, जिस वजह से केवल हमारे पास 93% का डेटाज है। इन योर बुक देर इज़ पाई चार्ट है, और इफ़ you have to compare this pie chart, or you will find that our although our forest area increased, हमारा forest area increased हुआ है because of the government policy we have made. Government has made reserved forest increase हुआ है, but still according to the national forest policy in 33% forest is required of total area, और हमारा अभी भी कितना है 22.78%. वाई 33% इज़ रिक्वायर्ड? बिकॉज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, एंड हमारा जो परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग ग्राउंड है वो भी डिक्रीज़ होता जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने कैटल से उनको कैसे फीड कराएंगे? तो और हमारा जो नेट सोन एरिया ये तो चेंज होता रहता है, कभी जो है इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग जो है फैलो लैंड कभी छोड़ देते कभी नहीं छोड़ते, तो ये तो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होता रहता है। तो दिस इज़ अबाउट दिस पाई चार्ट। नाउ लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड कंजर्वेशन मेजर। व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशंस? डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ नोन एज द लैंड डिग्रेडेशंस। किस क्यों वाई डिक्रीज वाई द क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ डिक्रीज क्यों होती है? देर आर मैनी फैक्टर्स, some are natural factor and some are human factors. Natural factors like water eroded area, water से जो इरोजन हो जाता है, forest degraded area, हम forest कट कर देते उससे, saline and alkaline land and wind eroded area, तो ये तो नेचुरल फैक्टर हो गए। और ह्यूमन बीइंग फैक्टर कौन से हो गए? माइनिंग हो गए, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है। और नाउ हाउ कैन वी कंजर्व लैंड डिग्रेडेशन? नेचुरल सी बात है, डिफोरेस्टेशन इज कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? बाय अफोरेस्टेशन। ग्रेजिंग इज द ओवर ग्रेजिंग इज द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं इसको? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। बाय दीज things we can conserve our resources. Now soil as a resources, soil is most important renewable resource and it is medium of plant growth and support different type of living beings. बहुत जो है living beings और इन सबको support करती है हमारी जो soil system है। soil system जो है different type of soil in India are found in our country. One is the alluvial soil, and you can see in this map alluvial soil. Very fertile soil consists of sand, silt and clay, rich in potash, phosphoric acid and lime, ideal for, here it is found, you can see here, or you can see this is the Ganga Brahmaputra plain और northern plain भी आपने पढ़ा हुआ है, this is northern plain में आपको इसको है, ये बहुत रिच है पोटैश, फॉस्फेरिक एंड लाइम में, आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी एंड व्हीट, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ पर ये एरिया सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है, और इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि सारे ग्रेन्स यहीं पर होते हैं। इसमें जो है डिपॉजिट बाय 3 रिवर्स का डिपोजिशंस यहाँ पर होता है। इसमें कौन कौन सी रिवर है? इंडस रिवर, हेयर इज़ गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एंड हेयर इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। 3 रिवर्स आर देयर, तो जो है तीनों से ये बनते हैं। एंड यहाँ पर भी यू कैन सी हेयर डेल्टाज ऑफ महानदी, हेयर इज़ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, दीज रिवर्स आर फाउंड। तो ये ईस्टर्न कोस्ट पर भी कौन सी सोइल मिलती है? हमारे यहाँ पर एलुवियल सोइल है। दिस इज़ वाइडली स्प्रेड सोइल, सबसे ज़्यादा यही सोइल हमारे यहाँ पर मिलती है। खादर और बांगर, 2 टाइप्स ऑफ सोइल आर फाउंड। खादर नाम से ही पता चल रहा है, खाद यानी कि वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होती है। न्यू एलुवियल सोइल होती है। न्यू क्यों होती है? न्यू क्यों कहते हैं इसको? दैट इज़ रिन्यूड बाय द रिवर एवरी ईयर, हर साल जो है इसको रिन्यू कर देती है रिवर। बांगर सोइल ओल्ड सोइल है, लेस फर्टाइल देन खादर,
and Bangar is conker nodules in it, but Khadar is having fine particles. Khadar में fine particles होते हैं. And this is black soil. Another classification is black soil. Black soil you can see in गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यहाँ पर मिलती है. इसको रेगुर सोयल भी बोला जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगुर एंड इट इज़ वेरी सूटेबल टू ग्रो कॉटन, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा जाता है. इट इज़ मेड ऑफ लावा से बनी होती है. क्लेई सोइल होती है एंड नोन फॉर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी. किसके लिए जानी जाती है? क्योंकि इसमें मॉइस्चर जो है वो होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है. रिच इन सोइल न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम. पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट में पुअर होती है. रेड एंड येलो सोइल. नेक्स्ट यू कैन सी हेयर ऑल्सो रेड एंड येलो सोइल डेवलप इन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल. जहाँ पर भी लो रेनफॉल होती है वहाँ पर होती है. ये वेस्टर्न घाट है. वेस्टर्न घाट के इस साइड में हाई रेनफॉल होती है, बट दूसरी साइड जो है लो रेनफॉल होती है. फाउंड इन पार्ट ऑफ यू कैन सी हेयर उड़ीसा. Here is Odisha, you can find here, and Tamil Nadu. तो ये मैनी प्लेसेस पर ये मिलती है. छत्तीसगढ़ ऑल्सो. एंड डेवलप इन रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ आयरन. डिफ्यूज़न ऑफ आयरन से ये रेड कलर की होती है. एंड इन हाइड्रेटेड फॉर्म ये कैसे कलर की हो जाती है? येलो कलर की होती है. दिस नेक्स्ट वन इज़ द लेटराइट सोइल. लेटराइट सोइल है नेक्स्ट हमारी. हेयर यू कैन सी हेयर मेघालय में, यहाँ पर सम पार्ट इन मध्य प्रदेश, राजस्थान ऑल्सो. एंड दिस पार्ट जो है डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड. इसको जो है लेटराइट सोइल है, ये लेटिन वर्ड से ड्राइव हुई है और इसका मतलब होता है ब्रिक. ब्रिक मीन्स ईट जो होती है, ब्रिक्स होता है. एंड डेवलप इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर. जहाँ हाई टेम्परेचर होता है, जैसे यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है. और लो रेनफॉल जहाँ पर होती है वहाँ पर ये डेवलप होता है. रिजल्ट इन हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल. सॉरी, लो रेनफॉल नहीं, हाई रेनफॉल. तो जो है इंटेंस लीचिंग यहाँ पर होती है. मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु है फॉर द हेयर ऑल्सो. एंड केशू नट यहाँ पर इन एरियाज़ में किया जाता है. तो इसकी मेन क्रॉप कौन सी हो गई? केजू नट. एंड next one is the arid soil. Arid soil found in Rajasthan only. Sandy in texture, saline in nature. सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई है. इसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होते हैं. और इसमें अगर हम नीचे हॉरिजन में, लोअर हॉरिजन में देर इज़ कंकर नोड्यूल्स. कंकर नोड्यूल्स होते हैं क्योंकि कैल्शियम इनमें ज़्यादा होती है और उससे कंकर नोड्यूल्स बन जाते हैं. और ये राजस्थान के इन पार्ट में मिलती है. लास्ट वन इज़ फॉरेस्ट सोयल. यू कैन सी इन जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, सिक्किम एंड इधर अरुणाचल प्रदेश में मिलती है. ये अकॉर्डिंग टू देयर हाइट इनके टेक्सचर्स जो है चेंज हो जाते हैं. लॉमी एंड सिल्टी इन वैली साइड यानी कि माउंटेन एरिया से नीचे आएंगे तो लॉमी और सिल्टी मिलेगी. कॉर्स ग्रेन्ड जो है अपर पर जो है इनमें कंकर नोड्यूल्स होंगे. एंड फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ इन वैलीज. तो दीज आर अबाउट योर सोयल. नाउ सोयल इरोजन. What is soil erosion? क्या होता है soil erosion? Soil erosion means removal of top layer of soil. Removal of top layer of soil. किस कारण से होता है soil erosion? कुछ तो नेचुरल कॉज होते हैं जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर, इनकी वजह से होता है. और कुछ ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड माइनिंग. तो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ लैंड सॉइल इरोजन. कौन कौन से टाइप्स ऑफ सोयल इरोजन? गली इरोजन. यू कैन सी इन दिस picture here only. This is called gully erosion. Running water through clay soil and makes deep channels.
डीप चैनल्स बना देती हैं, तो दैट इज़ गली इरोजन. एंड दिस लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशंस, दैट्स वाई दिस लैंड इज़ कॉल्ड बैड लैंड एंड रेवाइंस इन चंबल. चंबल में इनको रेवाइंस बोलते हैं, बैड लैंड्स को ही. गली इरोजन, बैड लैंड और रेवाइन इज सेम थिंग. सेकेंड इज़ द शीट इरोजन. सेकेंड हमारा कौन सा इरोजन है? शीट इरोजन. समटाइम वाटर फ्लोज एज ए शीट ओवर ए लार्ज एरिया. एक लार्ज एरिया से पूरा जो है ऊपर से नीचे आता है, तो अपने साथ जो है सारा जो भी सॉइल होती है उसको वॉश डाउन कर देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड शीट इरोजन. उसको शीट इरोजन कहते हैं. और विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन. तो ये तीन है. वन इज़ गली इरोजन, अनदर वन इज शीट इरोजन एंड थर्ड वन इज़ विंड इरोजन. सो दैट हाउ कैन वी कंजर्व द सोइल, कैसे कंजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ द कंटूर प्लॉइंग. कंटूर प्लॉइंग क्या होती है? इन अर्लियर वीडियो आई हैव टोल्ड यू कंटूर्स क्या होते हैं. द इन लाइन्स दैट ज्वाइन द सेम एरिया, सेम एरिया को जो ज्वाइन करते हैं. तो प्लोइंग अलोंग कंटूर लाइन्स इज डिसलरेट द वाटर एंड कैन कंजर्व द सोइल. स्टेप जो है टेरेस फार्मिंग स्टेप कैन बी कट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस. टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन. एंड थर्ड वन इज द स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? फील्ड, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप एंड स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट. उनके बीच में, स्ट्रिप्स के बीच में क्या ग्रो, जैसे ये स्ट्रिप है, इसके बीच में यहाँ ग्रास लगा दी, फिर स्ट्रिप बनाई तो ग्रास लगा दी, तो ऐसे जो है उस वो वाटर के स्लो जो है फ्लो को स्लो कर देता है, और उसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं. शेल्टर बेल्ट ऑल्सो, प्लांटिंग ट्रीज इन ए सिंगल लाइन. एक सिंगल रो में प्लांटिंग जो है ट्रीज़ को प्लांट करना, दैट इज़ शेल्टर बेल्ट. वो शेल्टर बेल्ट कहलाती है. तो बाय दीज मेथड वी कैन कंजर्व सोइल रिसोर्सेज. थैंक यू. Student, this is your revision of first chapter geography, resources and development. I have seen many students are not watching these videos, so watch these videos. We will not revise the thing again and again. You have to learn these chapter also, because these chapter will come in pre-midterm, and you have to be regular with your homework. We will, on the very first day of school, we will see your all notebooks. I will send you MCQs of this chapter. You have to learn this chapter, and you have to do all the MCQs yourself. Stay healthy, stay home. Thank you.